Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Today in this video, we will discuss important MCQs related to food science and technology. So before starting this video, make sure you have subscribed this channel and press the bell icon too. Now here we start with the first question, and the question is, whey is the byproduct in the manufacture of dash. So among these four options, that is skim milk, butter, cheese, yogurt, इन चारों में से किसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन के टाइम पे एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, एंड दैट इज नोन एज वे. एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज चीज़. सो चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड वे. नाउ वी डिस्कस व्हाट इज वे. You have heard about whey. Whenever we manufacture cheese, at that time a liquid is produced, and that is called whey. So whey is a liquid which remain or left out after the manufacturing of a cheese, and this whey has lot of commercial uses because it has lot of nutritive value, so it can be add in some other products to add the value of that product. Now question number 2, adding vitamin D to cow milk can eliminate which of the following diseases? Your options are night blindness, rickets, scurvy, both A and B. So the question is, अगर हम मिल्क में विटामिन डी को ऐड करते हैं तो कौन सी डिसीज़ को हम एलिमिनेट कर सकते हैं? सो विटामिन डी जो होता है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन. यू ऑल नो देयर आर mainly two types of vitamins. One is fat soluble vitamins and the other one is water soluble vitamins. So the vitamins A, D, E and K, they constitute under the fat soluble vitamins. So vitamin D is a fat soluble vitamin. और अगर हम अपनी डाइट में प्रॉपर विटामिन डी नहीं लेते हैं, सो मेनली जो डिसीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड रिकेट्स. सो हियर the right answer is option B, rickets. And the one more thing which is important regarding the vitamin D is the scientific name. Remember that the scientific name of vitamin D is calciferol. Now the next question 3 is, putrefaction type of food is commonly seen in, and your options are fruits, canned food, fresh meat, milk. Before going to answer this question, first we have to understand the term putrefaction. What is the meaning of putrefaction? You all have heard about the decomposition process. Decomposition is a process during which the organic matter is completely decomposed. कंप्लीटली डिकम्पोज का मतलब होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है सिंपल पार्टिकल्स में. सिंपल पार्टिकल्स में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ रिफर्ड एज अ कंप्लीट डिकम्पोजिशन. और ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, ये रिमेंबर दैट ये किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सम बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. That is called decomposition. And the one more thing which is important regarding the decomposition is that there is no foul smell is produced. यानी यहाँ पे कोई अजीब सी स्मेल प्रोड्यूस नहीं होती है during the process of decomposition. And now we come on the main topic, that is putrefaction. Putrefaction is also similar to decomposition, but there is a little bit different. जैसे कि डिकम्पोजिशन में देखा था कि ऑर्गेनिक मैटर कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, बट इन केस ऑफ पुट्रीफैक्शन ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो पार्शियल डिकम्पोज होता है. इट इज़ पार्शली डिकम्पोजेज. और सेम यहाँ पे भी कौन होगा? बैक्टीरिया की प्रेजेंस रहेगी. बैक्टीरिया ये जितने भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा होता है, और यहाँ पे फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है. So this is the only difference between a putrefaction process and decomposition process. And now you are able to answer this question. The question is कि putrefaction जो होता है वो किस टाइप की फूड में देखा जाता है? And here the right answer is option C, that is fresh meat.
तो जो फ्रेश मीट होता है उसमें पुट्रीफेक्शन प्रोसेस देखा जाता है, यानी पुट्रीफेक्शन का मतलब कि वो पार्शली डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, destruction of enzyme which initiate the self decomposition in food is termed as, and your options are blanching, curing, ripening, pasteurization. So this line is very much informative, that is the destruction of enzyme. इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एंजाइम का डिस्ट्रक्शन हो जाता है? एंजाइम डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है फूड में वो स्टार्ट हो जाता है, और फूड जो होता है वो किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन उसमें नहीं हो पाता, दैट इज़ उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, लंबे टाइम तक वो फूड प्रिजर्व रह सकता है। एंड द मेन थिंग कि जो फूड प्रिजर्व रहता है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स, जो उसमें एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, वो एंजाइम का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एंजाइम्स का डिस्ट्रक्शन हो पाता है? दैट इज़ ऑप्शन ए, ब्लांचिंग इज़ द राइट आंसर। सो ब्लांचिंग क्या होता है? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्लांचिंग। ब्लांचिंग मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम। बेसिकली यू हैव हर्ड अबाउट द ब्राउनिंग रिएक्शन। Browning reaction in food. There are two types of browning reaction in food. The first one is enzymatic browning, which is mainly occur in food due to the presence of some enzymes which cause browning in the ब्राउनिंग बेसिकली जो होती है वो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करके हो जाती है। एंड द अदर टाइप ऑफ ब्राउनिंग इज नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग and is also known as chemical browning, because enzymes are not there but some chemicals are there which are mainly responsible for the browning. So mainly so enzymatic browning hoti hai, for example we take a very simple example. Suppose you cut a potato, apple, this types of fruits or vegetable, and when you expose these to external atmosphere, then these type of product takes oxygen from the atmosphere, and when the oxygen react with these enzymes, like one of the famous enzymes regarding browning is EPO, that is polyphenol oxidase. This is the name of that enzyme. Polyphenol oxidase is an enzyme which is mainly responsible for the browning reaction in the food, and this enzyme is inactivated by the process of blanching. Next, question number 5. Essential amino acid present in low amount in legumes, and your options are lysine, methionine, leucine and valine. तो क्वेश्चन ये है कि जितनी भी हमारी लेग्यूम्स होती हैं, दालें होती हैं, उनमें कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है? दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लाइक विच अमीनो एसिड इज डेफिशिएंट इन लेग्यूम। तो लो अमाउंट सिंपल मीन्स डेफिशिएंट, जिसकी कमी देखी जाती है। तो जितनी हमारी लेग्यूम्स हैं उसमें कौन सा अमीनो एसिड कम होता है? एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मिथियोनिन। सो मिथियोनिन एक अमीनो एसिड है। यू ऑल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, वन इज एसेंशियल अमीनो एसिड एंड द अदर वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में हमारा आता है मिथियोनिन। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर है C5H11 and O2 and S. This S represents the sulfur. You have already know that बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर में सल्फर प्रेजेंट होता है। There are very few amino acids in which sulfur is present, so among them methionine is very common. So remember that its structure containing sulfur. Question 6. Which one of the following is fermented beverage prepared from vegetable? तो ये चार ऑप्शन हैं आपके आगे, केफिर, कांजी, बटर मिल्क एंड कुमिस। दे ऑल आर फर्मेंटेड बेवरेज। ये चारों की चारों ही जो हैं फर्मेंटेड बेवरेज हैं। बट योर क्वेश्चन इज इन चारों फर्मेंटेड बेवरेज में से कौन सी बेवरेज है जो कि वेजिटेबल्स यानी सब्जियों से बनाई जाती है? सो वन बाय वन वी सी दीज ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन है केफिर। सो जो केफिर होता है ये बेसिकली एक मिल्क से
मिल्क को इसमें यूज़ करते हैं, मिल्क प्लस जो केफिर ग्रेन्स होते हैं, मिल्क और जो केफिर ग्रेन होते हैं इनके कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर करी जाती है और बेसिकली ये फर्मेंटेड बेवरेज होती है जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमन है रशिया में। इसके अलावा जो नेक्स्ट है कांजी, ये भी एक तरह का फर्मेंटेड बेवरेज है और ये प्रिपेयर करा जाता है कैरेट प्लस बीट रूट्स। इसमें मिल्क इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ कैरेट बीट रूट इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो अदर स्पाइसेस होते हैं उनका मिक्सचर होता है और उसको फर्मेंट करके प्रिपेयर की जाती है कांजी। बटर मिल्क, तो बटर मिल्क अगेन ये मिल्क से प्रिपेयर होने वाली एक फर्मेंटेड बेवरेज है। क्यूमिस की अगर बात करें तो क्यूमिस में भी अगेन मिल्क इन्वॉल्व होता है प्लस इसमें लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल इन्वॉल्व होता है। सो होप सो यू गेट योर आंसर कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी फर्मेंटेड बेवरेज है जो वेजिटेबल से प्रिपेयर करी जाती है, और यहाँ पे जो चारों की चारों हैं ये फर्मेंटेड बेवरेज हैं, लेकिन जो वेजिटेबल से बनाई गई है दैट इज़ कांजी, यानी ऑप्शन बी कांजी इज़ द राइट आंसर। बाकी सब में मिल्क इन्वॉल्व है लेकिन कांजी में वेजिटेबल्स में कैरेट प्लस बीट रूट ये इन्वॉल्व होते हैं। Next question 7. This is very important question and the question is lactose is a disaccharide containing dash. You all know the classification of carbohydrates. तो जो carbohydrates होते हैं they are generally classified into 3 categories: monosaccharide, disaccharides and the last one is polysaccharides. सो लैक्टोज एक डाइसैक्राइड शुगर है, यानी लैक्टोज जो है डाइसैक्राइड के अंदर आएगा और डाइसैक्राइड शुगर्स जो होती हैं जनरली दो मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तो लैक्टोज जो है डाइसैक्राइड है, ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? यू हैव दीज ऑप्शंस, ऑप्शन ए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, देन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, सी ग्लूकोज एंड ग्लूकोज एंड लास्ट ग्लूकोज एंड माल्टोज। So try to give the answer of this question. This is very simple question. लैक्टोज जो है डाइसैक्राइड है जो कि किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। अब हम बाकी एग्जांपल्स की भी बाकी जो ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि बी ऑप्शन जो है राइट है, दैट इज गैलेक्टोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा लैक्टोज जो कि डाइसैक्राइड है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज फ्रक्टोज। सो हैव यू रिमेंबर कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से कौन सी शुगर बनती है? आंसर इज सुक्रोज। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनती है सुक्रोज शुगर जो कि अगेन एक डाइसैक्राइड है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनती है लैक्टोज जो कि अगेन डाइसैक्राइड है। देन सी ऑप्शन है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैक्राइड है। और लास्ट ऑप्शन ग्लूकोज और माल्टोज, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये गलत है, बिकॉज ग्लूकोज एक मोनोमर है, दैट इज़ ओके, बट माल्टोज एक डाइसैक्राइड है। तो मोनोसैक्राइड और डाइसैक्राइड कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो ऑप्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। तो वेल जो हमारा क्वेश्चन था कि लैक्टोज एक डाइसैक्राइड जो किससे मिलकर बनाता था, आंसर इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। Question 8. This is also very simple question. Question is vitamin dash functions in normal blood clotting. तो बहुत सारे विटामिन होते हैं जिनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। तो एक ब्लड क्लॉटिंग नाम का जो फंक्शन होता है वो कौन सा विटामिन परफॉर्म करता है? योर ऑप्शंस आर विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी एंड विटामिन ई, एंड हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन के। सो विटामिन के जो है ये नॉर्मली हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ये बेसिकली क्या प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग। जब भी हमारी चोट लग जाती है तो उस टाइम पे जो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है उस चीज़ को प्रिवेंट करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। एंड अगेन दिस इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगेन इसका साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के इज़ फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है। And now we move on next question, question 9, that is major component of egg shell is.
सो एग का जो शेल होता है, आउटर कवरिंग जो होती है उसका मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या है? योर ऑप्शंस आर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, calcium phosphate and calcium chloride. This is very simple question and the right answer is option B, that is calcium carbonate. So जो calcium carbonate है, this is the main structural component of the egg shell. Question number 10. World Food Safety Day is observed on. तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन आर 16 अक्टूबर, 1 जून, 7 जून एंड 7 सितंबर. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड डे. सो यह ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया. दैन 1 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क day. So again this option is eliminated and the third option is 7th June. Yes, 7th June को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, यानी ये ऑप्शन आपका राइट है. और 7 सितंबर की अगर हम बात करें तो 7 सितंबर में हम देख सकते हैं कि 1 से लेकर 7 सितंबर ये जो पूरा वीक होता है, इस पूरे वीक को हम न्यूट्रिशन वीक की तरह सेलिब्रेट करते हैं. सो होप सो यू गॉट योर आंसर कि जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 7th जून. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी. ये जो पर्सनालिटी है इनको आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव दिस हिंट दैट इज ही इज़ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन एंड ही इज रिलेटेड टू डेयरी सेक्टर एंड you can see the answer is written here, that is Vergis Kurin. He is very famous personality. His name is Vergis Kurin, also known as father of white revolution. Also इनका एक दूसरा नाम भी है, that is called मिल्क मैन ऑफ इंडिया. इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. इन्होंने मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. इसके अलावा यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द वर्ल्ड फूड प्राइज़. वर्ल्ड फूड प्राइज़, ये इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था. किस साल मिला था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 1989 में. 1989 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द डेयरी सेक्टर. इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा था दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड. रिमेंबर दिस, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ से रिलेटेड है. तो ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू द डेयरी सेक्टर और ये वर्गिस क्यूरिन के द्वारा स्टार्ट हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो रिमेंबर अबाउट द मिल्क डे. तो मिल्क डे जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स. एक होता है हमारा नेशनल मिल्क डे. नेशनल मिल्क डे जो होता है दैट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गिस क्यूरिन और ये कब सेलिब्रेट होता है? दैट इज़ ऑन 26 नवंबर. तो रिमेंबर 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे. और एक होता है हमारा वर्ल्ड मिल्क डे. दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स. नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व्ड ऑन 26 नवंबर, वेयर एज वर्ल्ड मिल्क डे जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, वर्ल्ड मिल्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जून को. रिमेंबर दीज डेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. The process of stiffness of muscles in meat and make it inextensible, this is called. तो ये प्रोसेस होता है जब मीट की जो मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और वो इनएक्सटेंसिबल होते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर रिगोर मोर्टिस, टेम्परिंग, कंडीशनिंग एंड एजिंग. एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज़ रिगोर मोर्टिस. सो रिगोर मोर्टिस क्या होता है? बेसिकली जब हम किसी भी मीट को कोई एनिमल का मीट प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पे उसकी मीट में स्टार्टिंग में स्टिफनेस डेवलप हो जाती है. उस स्टिफनेस के प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज़ रिगोर मोर्टिस. क्वेश्चन नंबर 13. द डेवलपमेंट ऑफ rancidity in food is due to which of the following component? So rancidity is very important and basically it is related to which of the following component? The options are carbohydrate, fats,
vitamins, minerals. सो रेंसिडिटी बेसिकली एक अनडिज़ायरेबल चीज़ है जो कि होनी नहीं चाहिए फूड में, अनडिज़ायरेबल चीज़ है, मेनली किस चीज़ से रिलेट करती है, एंड हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, दैट इज़ फैट्स। बेसिकली जो हमारे फैटी फूड्स होते हैं जिनमें फ़ैट प्रेजेंट होता है, तो फैट से क्या होता है कि ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, उसके बाद जो फूड होता है वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड होने के कारण जो फूड होता है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंजप्शन पर्पस। सो योर द क्वेश्चन इज कि रेंसिटी किससे रिलेट रखती है, द राइट आंसर इज फैट्स, की रेंसिटी जो है फैट्स रिलेट रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, द रिसेप्टर दैट आर सेंसिटिव टू लाइट इज कॉल्ड। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं इनको क्या कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर जियो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स। या आंसर 4, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, फोटो रिसेप्टर, बिकॉज द लाइट के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं फोटो, और चारों ऑप्शंस में से जो फोटो है वो 4th ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज फोटो रिसेप्टर्स। एंड नाउ क्वेश्चन 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। The 15th question is the scientific word for sense of smell is। तो sense of smell के लिए हम कौन सा scientific word यूज़ करते हैं? Options are audition, olfaction, biosensing, gestation, and here the right answer is option 2, that is olfaction। तो olfaction जो टर्म है ये बेसिकली यूज़ करा जाता है सेंस ऑफ स्मेल, जब हम किसी चीज़ की सेंसिंग करते हैं, एट दैट टाइम व्हेन वी स्मेल द प्रोडक्ट, दैट द साइंटिफिक वर्ड फॉर दैट पर्पज इज olfaction, whereas gestation is a word which we use for the sense of taste। तो किसी चीज़ को टेस्ट करने से रिलेटेड होता है gestation और स्मेल से रिलेटेड होता है olfaction।